Hello, I'm Vaishali Kohli and you're watching NewsX. Now viewers, NewsX has been keeping you updated about Delhi's air quality, which has plummeted post-Diwali, with the overall AQI hitting a hazardous 547, PM2.5 at 276 and PM10 at 547 over 15 times. According to Safe Limits, marking the worst post-festival air in 5 years. Areas like Anand Vihar are in the severe zone at 511, with smog slashing visibility and shrouding landmarks like India Gate, where AQI hovers at 254. Firecracker ban violations, stubble burning, down 77%, but still significant. Vehicular emissions and low winds have spiked PM2.5 to 675 micrograms per cubic meter on Diwali night. Health risks are soaring, with over 200,000 pollution-related hospitalizations in Delhi from 2022 to 2024. GRAP Stage 2 bans coal and old generators, while anti-smog guns and water sprinklers are deployed. Cloud seeding is planned for October the 29th. And I have my colleagues across the city joining us for all the updates. I have Aditya Vadhavan joining me from India Gate, Akram Khan from Greater Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad and Gulshan Grover from Gurugram. I want to go to my colleague Aditya Vadhavan first, who's joining me from India Gate. Aditya, what can you tell us about the AQI levels? Well, absolutely, Vaishali. We're just standing at the India Gate at this juncture, and still the air quality index here at India Gate is in the poor category. I would just request my video journalist Deepak to just pan across and show the visuals. This is all smoggy, a thick cloud of smog and haze has engulfed the India Gate area. And if you see, if I would request my video journalist to just pan across, there is a smog gun deployed. There's a truck carrying a smog gun that has been deployed at the India Gate to tackle the air pollution here, because day by day, as the days are going, stubble burning, incidents of stubble burning are increasing in the states of Punjab and Haryana, and which is contributing significantly to the air pollution in Delhi. And in the days to come, already we have seen this GRAP 2 measures are enforced in Delhi. If the air quality index of Delhi slips into the severe category, then we could expect some robust measures by the government. However, cloud seeding will be done on the 29th October, as you mentioned rightly. However, all the patients, who are living with comorbidities like asthmatic and bronchitis patients are at risk because the hospitalizations are increasing. And at this juncture, it needs to be seen how things unfold for the Delhiites, because the situation is not at all favorable, because the pollution is rising, and in several areas of Delhi, in several hotspots like Anand Vihar, Jahangir Puri, Vivek Vihar and Mandir Marg, the air quality index has already crossed the benchmark level. So it needs to be seen, Vaishali, what will the Delhiites in the days to come get respite from this air pollution that has been majorly happened due to the green crackers that were burned on Diwali, and also after the 2 days after Diwali. So at this juncture, the situation is very, very worrisome for the Delhiites. Vaishali. That's right, Aditya, and I see you wearing a mask as well, and that's a very important precaution that you're taking. And now moving on to Akram Khan, who's joining me from Greater Noida. Akram, what can you tell us about the AQI levels in Greater Noida? देखिए वैशाली, ग्रेटर नोएडा की अगर AQI लेवल की बात करें तो इस समय 305 है जो दर्शाया गया है, जो रिकॉर्ड किया गया है। और उसके अलावा पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखा दूं, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो धुंध है उसकी काली चादर अभी भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दीपावली के दूसरे तीसरे दिन बाद अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो धुंध है वो छाई हुई है। जो आसपास की बिल्डिंग है वो देखने में थोड़ा सा धुंधली दिख रही है, लेकिन अभी तक जो विशेषज्ञों की माने उनका कहना है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पर्यावरण के विशेषज्ञ हो, उनका कहना है कि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसलिए जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें पहले प्रिकॉशन बरतने होंगे। और इसके अलावा देखिए दूसरी बात अगर हम कहें तो ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब श्रेणी में। और देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि ये 305 दिखा रहा है इस समय पर। जहां हम खड़े हुए हैं लोकेशन वो पूरा रेड है। हालांकि दीपावली पे उससे अगले दिन बहुत ज्यादा रेड था। और अब तक की अगर बात करी जाए तो जितना ग्रेप 2 को लेकर अब जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिसका मेरे पीछे आप कार्यालय देख रहे हैं वहां से
ग्रेप 2 की भी अब जो लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना ग्रेटर नोएडा नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेजी से चल रहा है, और जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है उसको लेकर अब अधिकारी इस पर बैठक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि जो ग्रेप 2 के नियम है वो लागू होंगे तो किस तरह से रोड मैप बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो जो आर्टिफिशियल बारिश है उसको करने के लिए यहाँ पर प्राधिकरण अभी सोच रहा है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सबसे ज्यादा, क्योंकि हाईवे है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक खराब होने की यहाँ पर ज्यादा वजह एक ये भी है, क्योंकि कई जगह जो अलग अलग हॉट स्पॉट है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा की बात करें चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपावली के बाद ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंचा है, उससे लोगों को मुश्किलें जरूर हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, क्योंकि जो कल और 2 दिन परसों 2 दिन हवा चली है उससे थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर सुधार आया है। लेकिन अक्टूबर महीने का जो लास्ट वीक है वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में कहीं भी जो सर्दी की दस्तक है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो हवा की नमी की परतें हैं वो हवा की उसकी वजह से ये जो सर्दी है उसमें अभी देरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से धुंध नोएडा ग्रेटर नोएडा में छाई हुई है उससे लोगों को काफी मुश्किलें हैं। और ऐसे में जितने कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं, क्योंकि ग्रेप एक 1 लागू हो चुका है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पर अब प्राधिकरण और जो पॉल्यूशन विभाग है वो सख्ती करने जा रहा है, क्योंकि लगातार इसकी वजह भी एक है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। दूसरी बात अगर हम कहें तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। तकरीबन 50,000 ऐसे वाहन हैं जो नोएडा ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि नियमों के विपरीत है, मानकों के विपरीत है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर जो धुंध है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं, तो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो हवा है उसका स्तर सुधरेगा, लेकिन तब तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके बाद जो लगातार जो सड़कों पर हवा सड़कों पर जो जी सफाई है अकरम, बहुत बहुत उसको शुक्रिया लेकर। सारी जानकारी के लिए। और अब मेरे साथ अनिल चौधरी आप जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। अनिल, पहले तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे AQI लेवल क्या है गाजियाबाद में, और क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखिए, दिवाली के बाद से जैसे ही हमारा आसपास का वातावरण बेहद खराब स्थिति में पहुंचा, उसके बाद ग्रैप 2 के नियम भी लागू किए गए। ग्रैप 2 के नियम जब लागू किए गए तो तमाम पाबंदियां भी गाजियाबाद में लागू की गई, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो उन पर रोक लगाई गई, और साथ ही ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया जो कंपनी है या कारखाने हैं जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसे वाहन को चेकिंग किया गया जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो ग्रैप 2 के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को चुनकर सील करने का काम किया गया। साथ ही अभी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, और साथ ही AQI आपको बता दें, बीते 2 दिन की बात करें, 2 दिन पहले जो है 350 AQI बना हुआ था, पर आज गाजियाबाद में थोड़ी सी राहत मिलती हुई गाजियाबाद को दिखाई दे रही, गाजियाबाद की जनता को। आज 275 AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है गाजियाबाद का। पर दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का, वहां पर अभी भी रेड जोन में ही AQI पहुंचा हुआ है। 305 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का दर्ज किया गया है। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके की थोड़ी राहत मिली है, पर अभी भी तस्वीरें अपना में बयां कर रही हैं किस तरीके का पोल्यूशन ने पूरे गाजियाबाद को जकड़ा हुआ है। क्योंकि रेड जोन से बेशक बाहर आया गाजियाबाद, पर फिर भी उसी स्थिति अभी भी पुअर स्थिति में ही जो है आसपास का वातावरण बना हुआ है। आप देखेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं बिल्कुल काले धुएं में ढकी हुई आपको दिखाई दे रही है। हल्की हल्की जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हालांकि कड़ाके की धूप निकली हुई है, आप सोच सकते हैं, उसके बावजूद भी जो इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं धुंधली हैं। हालांकि ग्रैप 2 के नियम की जब मैंने तमाम चीजें बताई, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आप देखेंगे जो सड़कें हैं वो गीली है। यहाँ से अभी छिड़काव करता हुआ जो है जो दमकल विभाग है गाजियाबाद का, जलकल विभाग, उसकी तरफ से छिड़काव यहाँ किया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाजियाबाद के जो तमाम अधिकारी हैं अब अमल में ला रहे हैं। तो हो सकता है उसका असर भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, जो पोल्यूशन का स्तर पहले से कम हुआ है। और साथ ही जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो अपने आप में बयां कर रही है, क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है।
हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, पर अभी चला नहीं है, क्योंकि लगातार अधिकारियों की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिला अधिकारी के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग ली गई थी, क्योंकि दिवाली के बाद से लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया था रेड जोन में, तो उसको लेकर मीटिंग की गई। तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे सख्त निर्देश दे दिए गए कि आप ग्राउंड पर जाएंगे और ये चेक करेंगे कहां कहां पोल्यूशन ज्यादा फैलाया जा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। जी अनिल, वहीं बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड दोज वर लाइव विजुअल्स viewers that we are getting you of the pollution situation in Delhi. And now joining me is Gulshan Grover from Gurugram. गुलशन, आप बताइए कि पहले तो AQI लेवल क्या है गुरुग्राम में, और जैसे दिल्ली में छिड़काव किया जा रहा है, गाजियाबाद में छिड़काव किया जा रहा है, क्या गुरुग्राम में भी ऐसा हो रहा है? देखिए, इस समय सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 139 इस समय दर्ज किया जा रहा है। ये विकास सदन है, जहाँ कोई मिनी सेक्रेटरी एरिया है, जहाँ पर SP, DC, SDM, पुलिस कमिश्नर, तमाम जो आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पर इस समय 139 इस समय AQI दर्ज किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके अभी भी गुड़गांव में हैं जहां पर 300 से पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बेहद खतरनाक है। इसको लेकर गुड़गांव का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, वो लगातार इसको लेकर अब स्वीपिंग मशीनें जो है वो चला रहा है, छिड़काव कर रहा है। क्योंकि कल हमने देखा कि गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया की तरफ से एक आदेश जारी किए गए कि जहां जहां भी सड़कों पर मिट्टी है वहां पर स्वीपिंग मशीनों के द्वारा उन सभी सड़कों पर, सड़क किनारे मिट्टियों को हटाया जाए, जगह जगह छिड़काव किया जाए। और कृत्रिम बारिश के लिए भी, जिस तरह दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की जो योजना तैयार कर रही है, उसी तर्ज पर एक चंडीगढ़ लेटर भी सरकार को भेजा गया है कि गुड़गांव में भी एक बार कृत्रिम बारिश कराई जाए, ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। क्योंकि बेहद खतरनाक गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कल हमने सिविल अस्पताल गुड़गांव का निरीक्षण किया था, उस दौरान हमने देखा था कि काफी जो मरीज हैं अब OPD में पहुंच रहे हैं। पहले जो मरीज थे वो 2500 की संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन अब इससे लगभग एक डबल जो है वो मरीज हो चुके हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के मरीज हैं, खांसी के मरीज हैं, जुकाम के मरीज हैं, बुखार के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, एलर्जी के मरीज हैं। ये तमाम जो मरीज, इस तरह के मरीज जो है इस समय सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये जो इस समय गुड़गांव की जो हवा है वो काफी जहरीली है। लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ प्रदूषण जो है उनके अंदर जाता है, जिसके कारण जो है उनको बीमारियां हो रही है। साथ तौर से डॉक्टर अब ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल N95 का जरूर करें। क्योंकि जब कोरोना काल में हमने देखा था कि लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, तो अब फिर दोबारा से वही समय आ गया है। क्योंकि बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय है। यदि वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि उनको फिर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि जो प्रदूषण है, जो हवा इस समय जहरीली है, वो उनके अंदर नहीं जाएगी। हालांकि इसको लेकर नगर निगम अपनी तरफ से पूरी तरह एक्टिव जो है नजर आ रहा है। सड़कों पर छिड़काव जरूर किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं जहां पर टैंकरों के माध्यम से छिड़काव सड़कों पर किया गया या पेड़ पौधों पर किया गया। क्योंकि इस समय पेड़ पौधे अगर जो सड़क किनारे हैं वहां पर भी इस समय हम देख रहे हैं कि पत्तों पर मिट्टी जो है वो छाई हुई है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से तो जो भी कार्य है वो करेगा, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी। क्योंकि लोग अपने आसपास इलाकों के अंदर जहां भी उनके सड़क है, अगर उन पर मिट्टी है तो वो खुद भी वहां पर छिड़काव कर सकते हैं, पेड़ पौधों पर वो छिड़काव कर सकते हैं। और जो नियम ग्रैप स्टेज 2 लागू किए गए हैं, क्योंकि पहले स्टेज 1 था, अब स्टेज 2 लागू हो गया है, तो इसमें जो पाबंदियां हैं उन पर ध्यान रखने की बेहद सख्त जरूरत इस समय प्रशासन को है। क्योंकि चाहे वो डीजल की बात हो, डीजल इंडस्ट्री में जो डीजल जनरेटर चलते हैं उन पर पाबंदियों की बात हो, अब लोग प्राइवेट जो व्हीकल है उससे बचें, जो पब्लिक व्हीकल है उस पर ज्यादा चलें। क्योंकि गुड़गांव का जो सड़क है वो पूरी तरह से ट्रैफिक जाम जो है वो नजर आता है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां प्राइवेट लेकर चलते हैं। यदि वो पब्लिक वाहन से चलेंगे तो गाड़ियों की संख्या कम होगी, उससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। यदि वो अपने व्हीकल से चलेंगे तो वो और ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। अब बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए तो चिंता का विषय है ही है, और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि
यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से मैंने कहा 300 पार अभी भी कई इलाकों में है, गुड़गांव का सेक्टर 51 महफिल गार्डन एरिया या सेक्टर 46 एरिया की बात करें, सेक्टर 65 एरिया की बात करें, तो ये इलाका यहाँ पर 300 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर हम विकास सदन जहाँ पर तमाम आला अधिकारी बड़े अधिकारी बैठते हैं वहां पर जरूर राहत की सांस है। 139 इस समय दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण अगर रोकना है तो लोगों को अब खुद जिम्मेदारी समझनी होगी और ग्रैप जो स्टेज 2 के जो नियम बनाए गए हैं उन पर भी अब सख्त जो है निगरानी की जरूरत है। चाहे होटल रेस्टोरेंट में लकड़ी कोयला जलाने पर जो रोक है वो लगी हुई है क्योंकि स्टेज 2 में आता है ये नियम। पेट्रोल डीजल की जो पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लग गया है, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग और फैक्ट्रियां हैं उनको बंद करने की बात की गई है क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे तो उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ेगा। जी गुलशन, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना, व्यूअर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्क अप बिकॉज द सिचुएशन इन दिल्ली डज नॉट सीम टू इम्प्रूव year after year. But now moving on, I want to thank all my reporters for joining me. But now moving on, viewers, now the gold price in Delhi has been seeing some momentum since the start of the year.